है नहीं. Thank you Sudhanshu for coming and he's looking so different every time he comes. तो मैं तो बस पहले उनके लुक्स को देख के बोलती हूँ आप इतने हैंडसम हैं, आपको ये पहले से पता था कि नहीं? कभी शीशे के सामने खड़े होके आप इतराए हैं कि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ? खुलेआम फ्लर्ट करती हूँ वैसे, है ना? So thank you so much for being the star of this evening. Not only this evening, I would say, he has always supported us, ladies lounge, and especially me. और मैं बहुत वक्त से इनको जानती हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, छोटी मतलब बच्ची नहीं हूँ, बट वैसे नाम वाइज छोटी हूँ, कहीं स्टैंड नहीं करती आजू बाजू उनके. But still, thank you so much for all your support. So about ladies lounge, if I talk about Ankit, तो it was like just a small concept in my head. मुझे लगा कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं था. सो आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड टू स्टार्ट इट. आई वाज एट माय सिस्टर्स प्लेस एंड वी वर टॉकिंग और मुझे लगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जिसमें देयर आर ऑल फीमेल्स एंड वन मैन हु इज सराउंडेड बाय ऑल दोस. में देखो मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, मतलब कुछ तो बात है, वो भी माइक पे, है ना? सो यस. फिर मैंने सुधांशु को कॉल किया कि सुधांशु देयर इज one concept which I'm doing for Let's Talk with Namita. So वो ऐसा उन्होंने सुना भी नहीं, बोले कि नहीं you are doing it, तो जो हुक्म मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही बोला था ना आपने. मैंने बोला आप सुनते रहो, बोले नहीं आप कर रही हैं तो मैं आ ही रहा हूँ. So that's one wonderful thing about him. So huge round of applause for the man himself who's here. And whenever I ask him anything, he's always ready to join us. मतलब वो मुझसे पूछते भी नहीं है कि क्या है कैसे. And when he came, तो इतना chaos था यहाँ पे, मतलब like it was all messed up. जो मुझे आज भी लेट आने पर लगा, मुझे लगा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, बट मैं सबसे लेट होती हूँ. अब स्टार बनी भी नहीं हूँ, बट स्टिल सो सॉरी फॉर दैट. माय टीम माही इज ऑलवेज स्माइलिंग. एक टीम इंट्रोडक्शन के लिए मैंने उनको बोला था कि बड़ा इनफॉर्मल सा रहेगा और टीम को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपके सामने. दैट आई विल डू लेटर, बट आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से बिकॉज लेडीज लाउंज जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट व्हिच इज ऑल ड्रिवन बाय फीमेल्स and like made for men. So you would be questioning your taste in men, maybe all the females who are here. Thank you for joining us. And I think आपको शो अच्छा लगेगा. बन गया है, सुधांशु आए, उन्होंने बोला कि एपिसोड दिखा रहे हो, तो मुझे लगा उनको बोर नहीं करना चाहिए पूरा एपिसोड दिखा के. To get all the female attention, I think I would be stupid to say that I don't like it. Anybody who gets female attention likes it. It could be whoever, it could be a 90-year-old man also, they would like the female attention. And so yes, I let me start by telling you all about Namita a little bit from my perspective. So I met Namita for the first time at a press conference which was happening in somewhere in Andheri, and we were launching a song, an album actually, with my band, Band of Boys, and there were a lot of journalists. Normally अपने सब भाई बहन जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सब लोग आते ही हैं इवेंट्स पे. तो उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे एनर्जेटिक एक जर्नलिस्ट, एक लड़की जो मुझे दिखाई दी, who was very properly dressed. So she stood out. और तब मैं नमिता से मिला, मुझे नमिता जी हैं, और नमिता जी से उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ नाउ मे बी अ ईयर और अ लिटिल मोर देन दैट, what I realized is that every time I have spoken all those good things that Namita was saying about me, let me tell you a reason why I have always, whenever Namita has asked me something, I have always said, जो हुकुम, जब बोलो, जहाँ बोलो, जैसे बोलो, मैं आ जाऊँगा. The reason behind that is that, Namita is, apart from being such a vibrant person and very, very loving, I would like to say that every time I've spoken to anybody about her, or anybody who's spoken about her to me, has always said such great things about Namita. Always said very, very lovely things. And it's amazing that, a single girl like her, she's from Delhi, to have come into a city like Bombay and to have actually achieved so much. भाई थोड़ा सा पीछे साइलेंस रखना, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा साइलेंस रखना. मैं कुछ आज हमारी जो स्टार हैं यहाँ की, उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा. तो
मुझे ऐसा लगता है कि for a single girl to have come into a city like Bombay and to have made it to this level totally on her own without any support, and not just that, but also earned so much of love and respect from people, I think is a very, very big achievement. And that makes me feel very good. I feel very proud that I know her, you know, and she's a friend of mine. And I think that is why it is the way it is, that whenever she calls me, I say, anytime, anywhere, you tell me, I'm ready to come. So that is something I wanted to say about Namita. Happy birthday, Namita. Thank you. And when also I would like to say that whenever people start talking good behind your back, it means you said कि मैं अभी star बनी नहीं हूँ, but you're on your way there. This is आपके साथ एल्बम में काम करके शायद हाँ गाना करने के लिए, और मुझे किसी ने बोला था ना गाना करना चाहिए आप लोगों के साथ। अरे अरे बाप रे, ये तो जज्बा भी हो गया इनको जय। हाँ? वो तो चलो कोई बात नहीं, कृष्ण तो तुम हो ही, लेकिन तुमने मुझे भी लपेट लिया उस चक्कर में। मैडम को जैसी, जब तक मैं उतरा गाड़ी से तब तक ये मुस्कुरा रहे थे, जैसे ही इन्होंने देखा कि सफेद साड़ी में मैडम आई है, तो इनकी मतलब जो इनका जो चेहरा था, इनका एक्सप्रेशन वो देखने लायक था। अरे भाई साहब, इन्होंने तो गजब कर दिया। इन्होंने एक गाना रिलीज कर दिया मेरा नमिता के साथ, 2 सेकंड। Then he knows the art. So yeah, so I think Namita, you're a star already. So yes, I'm very happy to be a part of your journey, and I'm very happy that I'm a part of your journey in a way that I'm in your first episode of the Ladies Lounge, and I wish you all the success. And I have a very strong feeling that this Ladies Lounge is going to be a very, very big thing in the coming times, and I think सब लगा दिया, अभी तो और निकलेगा, निकलता है, बहुत प्यार आने वाला है। तो keep spreading love, keep spreading happiness and positivity like you always do. Such kind words. मतलब मैंने फोन पे बोला था वेलकम स्पीच मत बना के, और बोला नहीं जरूरत, मैं सीखता नहीं हूँ, ये मुझे इसने इंस्पायर किया आज, नीचे जो इसने आपका और मेरा गाना आते ही रिलीज करवा दिया ना। Thank you so much. Round of applause for the star himself. Big round of applause for the star of the night. देखिए ये एपिसोड नमिता जी के लिए तो स्पेशल है ही है, बट ये एपिसोड मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज ये नमिता का फर्स्ट एपिसोड है उनके टॉक शो का, और नमिता इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, और ये जर्नलिस्ट तो है ही, और इतने समय से जर्नलिज्म कर रही हैं, बहुत प्रोमिनेंट काम कर रही हैं जर्नलिज्म में, बट साथ ही साथ उनकी ये जर्नी अब शुरू हो रही है एक टॉक शो की, और ये टॉक शो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट नमिता थॉट ऑफ मी टू बी द फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस शो, और मुझे शूट करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी 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 यूनिक. It's called Ladies Lounge, and you are sitting as the one and only man in between so many women around you, and they are all looking at you with so much of love and appreciation, and it made me feel absolutely on top of this world. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस शो का, इस यूनिक शो के पहले एपिसोड का हिस्सा बना. हमेशा मुझे खुश करने के लिए धन्यवाद. नहीं मैं कितना खुश, अच्छा झूठ कह लेते हैं आप. ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर व्हेन द ऑडियंस वॉचेस द शो, जब वो शो देखेंगे जो आज 6 बजे ऑनलाइन हो रहा है, आपको बता दें 6:30 ऑनलाइन होने वाला है ये शो, तो व्हेन पीपल सी इट, उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ. और आप घर जाके देखेंगे? मैं घर जाके देखूंगा, ऑफ कोर्स देखूंगा यार. आई वांट टू सी हाउ things have turned out. how things have turned out, whether I was nervous in front of the ladies, or or did I hold my fort well. But I think this is going to be one of the most interesting shows. There are so many podcasts happening आज की डेट में, बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, हर आदमी पॉडकास्ट कर रहा है. उस बीच में इतने सारे रट में, I think this will come out as a breath of fresh air, because it has a very unique concept. And I think for any artist to be in the midst of people who are
the artist's fans and so many of them, and that too ladies, it's a different vibe altogether. It's a different vibe altogether, and I think for every actor who comes on your episodes, I think it will be a memorable experience because you're sitting so up close, and it's such a personal space to be in with your fans and have a heart-to-heart discussion about so many things. And you made it very very special with obviously your presence and all the people who were genuinely very appreciative of my work and have loved everything that I've done in the past. And the biggest surprise you sprung upon me in the episode was getting my wife on the episode, which nobody has been able to achieve, not even me. And you achieved it. Not even you. Not even me. She's never agreed to be on the camera, and you convinced her, and I think it's a big achievement. That's a big deal. And so yes, I think it has been a fantastic experience. So, Namita, how was your experience interviewing him? And थोड़ा सा अगर ladies launch के बारे में कुछ बताएं मुझे. So as I told already कि ladies lounge जैसे सुधांशु ने सब बता ही दिया है कि it's a very different concept. तो मेरे like to me this idea came from a thought. जब भी मैं रात में घर पहुंचती हूँ, मतलब ये बड़ा weird भी है, but then yes, तो मैं लेट हो जाती हूँ कई बार. तो वहाँ पे हमारी बिल्डिंग जो है, वहाँ पे कुछ विंग्स हैं अलग अलग, तो सब विंग्स की लेडीज वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं रात में, और उनका वो थोड़ा चलता है ना सब गॉसिपिंग काइंड ऑफ सीन. सो कई बार मैं उनसे हेलो करके निकल लेती हूँ, कई बार ऐसे नहीं भी मुझे देखती है, नोटिस करती है और मैं निकल जाती हूँ. बट लाइक मैं एक बार जा रही तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये सारी लेडीज अपने घर के कामों से फ्री होकर आ जाती हैं, फिर बैठ के गॉसिपिंग करती हैं, लेकिन इनका मेन क्या रहता होगा गॉसिप करने का ना. तो मुझे लगा यार कोई ऐसा भी हो सकता है इनका, मतलब ऐसे वो तो सारी मैरिड है, तो मुझे लगा कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में डिस्कस नहीं करती. बट देन यस, इफ देयर इज वन गाय आई बिलीव in between all these females, number one is there is a balance. So only a guy can maintain a balance between all the female gossips happening. And another thing is, on the other way around is, कि when a male is surrounded by all the females, who doesn't love that? I think he's the one, the most charming one I think in front of me, जो मुझे लगता है जिन्हें females से limelight लेना और उनका attention बहुत पसंद है, मुझे लगता है ना. Tell me one man who would not like it. है ना? So I'm no stranger to that और fact. सुधांशु का क्यों मेरे दिमाग में आया, बिकॉज मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी कह सकती हूँ, कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ही इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड हैंडसम मेन आई नो इन दिस होल बॉम्बे. आई वाज टॉकिंग टू शिवानी, मैंने कहा यार ये इंसान कितना सुंदर है ये आदमी, आंखें देखिए है, मतलब एवरीथिंग इन शेप. मैंने पूरे मुंबई में मुझे इनसे सुंदर इंसान कोई नहीं लगता, मतलब बाय हार्ट भी, बाय फेस भी. लुक एट अ स्माइल. मतलब मैं जब आई एम सेइंग दिस बाय लाइक विद ऑल माय हार्ट कि मैं जब महादेव की तस्वीर देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात सुधांशु खड़े हुए हैं सामने. आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल. या मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण को देखती हूँ, मैं कहीं आपसे बात भी किया था ना मैंने इसके बारे में, तो मुझे लगता है ही वुड बी एबल टू प्ले महादेव रियली वेल. पहले मोहित रैना प्ले कर चुके हैं, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा अगर वो मेरे फ्रेंड ने क्रिकेट, तो वो अगर ये सुन ले तो. बट देन आई थिंक आई रियली फील कि डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग दैट ही इज अ महादेव भक्त, एंड ही ऑलवेज सेज कि मैं महादेव प्ले नहीं कर सकता बिकॉज उनकी भक्ति में करता हूँ और उनकी शक्ति मुझ में है. सो आई कांट डेयर टू प्ले महादेव ऑन स्क्रीन. दैट्स अ बिग थिंग दैट ही सेज, बट आई पर्सनली फील दैट यू कैन प्ले महादेव really well. Now you guys must have understood why I said this show is very special, because the host is so special. The host knows how to make the guest feel so special, so on top of the world. But thank you, Namita. Thank you for such really kind words. Honestly, very 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 heartwarming, and you do make me feel so good about myself, and it's very very kind of you. And I think this is the reason why I feel that your show is going to be a super success, because there is so much of positive energy, there's so much of love, there's so much of affection from you, and obviously the people who come around you and sit with you. I think the entire experience is absolutely fantastic for an artist who's been there, done that, who's
worked hard all his life, who's gone through so many things in life and reached wherever he has. And then to be surrounded with all those people who come from any normal walk of life and come and sit around you because they've been a fan of your work and they really appreciate your work on your face. I think that is a big, very, very big blessing, and which is why I feel. हो गया? अरे क्या बात। नहीं अच्छा मुझे लगा थैंक यू ये इसलिए बोला कि मैंने इसकी तारीफ नहीं अच्छा कर दिया। अच्छा मेरे को ये लगा I also thought मैंने उनको घर जाना उनको लगा आपने जैसे कहा कि very handsome, he's charming. लेकिन अभी हम तो इतने कई साल से देख रहे हैं, feel that he's just going younger day by day because we have been seeing it for the last 22 years now. What I mean, do you feel that he's going younger? Yeah, I don't feel that. मैं तो फील क्या कर रही हूँ हर बार इतने डिफरेंट लोग में आते हैं मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार आप तो कॉम्प्लेक्स करवा दोगे मैं यू वुड नॉट बिलीव whenever someone starts doing an interaction with him there is a female or even males everyone asks the same question to him how are you going younger day by day मुझे लगता है सबसे क्लीशे क्वेश्चन आपके लिए यही हो गया होगा हाँ अब तो आदत पड़ चुकी है ऑनेस्टली तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में का फेवरेट सॉन्ग हो गया है so of course yes or he always surprise us with whatever he comes up with respect to work अभी recently हमने ट्रेलर्स में देखा था तो शिवानी एंड आई वाज टॉकिंग कि यार पूरा एपिसोड सुधांशु को देखने के लिए देख डाला हमने कितने हैंडसम लग रहे हैं उसमें सिर्फ इसलिए I was scared just because of him. है ना थैंक यू so मतलब he is like a breath of fresh air that you would want to see always है ना आपकी आंखों में तारा बन जाते हैं पहले एपिसोड में सर है आगे के एपिसोड में थोड़ा सा प्लान्स क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं but I'm not आपके शो में आगे के एपिसोड्स Okay, as I told पहले भी कि this is just a start. So I wanted to start with my very dear friend Sudhanshu and he always says yes. तो मुझे लगा था मतलब पता ही था कि यहाँ से मुझे no नहीं आने वाला है. तो that was like एक वो था ना icing on the cake मेरे लिए है ना. But आगे Bollywood TV spots तीनों की industry से the most charming people, the heartthrobs, the most handsome amongst all हम उनको पकड़ पकड़ के लाने वाले हैं उन्हीं की ओजी फीमेल फैंस के साथ बिठाने वाले हैं और उन्हीं की ग्रिलिंग कराने वाले हैं सो यस द एम इज टू डू दैट बाकी वो कितना ग्रिल होते हैं मुझे नहीं पता और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि अब रियलिटी शोज के बादशाह कह सकते हैं आपको अभी बिग बॉस भी आने वाला है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिटी शो का बादशाह मत बोलो भाई मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में बहुत एक्टिंग की है बहुत कैरेक्टर्स किए आई वुड लाइक टू ऑलवेज बी नोन एज एन एक्टर as a performer and not I don't belong to the reality space. मैंने ये शो इसलिए किया था because it was a very niche kind of a show. बहुत niche audience के लिए उन्होंने बनाया था OTT के लिए. Otherwise I personally don't feel I belong in a reality space because it's a very different space altogether. और मैं अपनी कला में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ तो मुझे लगता है कि the best way I can entertain my audience is by either being a performer or playing a character or by singing a song to the audiences, maybe. So that is the only way I want to look at myself. क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी फिलहाल मैंने कुछ there is nothing that I've signed on because बार इतना हाई सेट हो गया है पिछले 2 प्रोजेक्ट से तो मुझे लगता है so I need to figure out something that is going to be at least at par with whatever I've done in the past. Thank you so much and one question I also want to ask yes please ask मतलब it's like You want to ask me? हाँ ना अच्छा वो तो है ना जल्दी once पूछ लो a नहीं तो journalist- पीछे से थैंक यू बोल देगा वो नाम क्या है आपका बताइए नाम शाबाश वो शादाब आदाब वेल अभी मैं नेशनल अवार्ड्स अभी हुआ है ना सो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपने और रूपाली ने कहा था ना कि टीवी एक्टर्स को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए एंड वी पर्सनली फील दैट यू हैव वर्कड इन टीवी सो वेल एंड बंडार्स कैरेक्टर हैज बिकम एन आइकॉनिक कैरेक्टर एंड आई फील कि टीवी एक ऐसा माध्यम है एक जरिया है जो लोगों तक पहुंचता है हर घर में जाता है इतनी फिल्म्स भी नहीं जाती बिकॉज सिनेमाघर में जाना पॉसिबल नहीं होता सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट और आपको लगता है कि लेडीज लाउंज में आने के बाद अब आपको नेशनल अवार्ड मिल ही जाना चाहिए नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं ये सब लोग टेलीविजन के लिए जर्नलिज्म करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं जगह जगह जाते हैं इवेंट्स कवर करते हैं
इतना कुछ देते हैं ऑडियंसेस को, और बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बॉर्डर पे जाके जब लड़ाई चल रही होती, बमबारी चल रही होती, गोलीबारी चल रही होती, तब भी जाके वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसको नेशनल अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बट मैंने ये मुहिम शुरू की थी एक्चुअली 2021 में। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व भी किया था। वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे इसलिए किया था बिकॉज मिनिस्ट्री में थोड़ा रीशफल हुआ था, पर अभी मैंने वापस इस मुहिम को मतलब बातचीत शुरू की है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊँ, एंड स्पेशली बिकॉज टेलीविजन इज द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर. It's the only platform that worked through COVID. While everybody was in their homes, we were the ones working, and all the people from television industry, सब लोग बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी एक्चुअली, बट एंटरटेनमेंट कभी नहीं रुका. तो मुझे लगता है टेलीविजन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको 100% नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और मैं इस बात को सरकार तक ले जाना चाहता हूँ, और मैं लेके भी जाऊंगा, एंड 100% आई विल मेक श्योर दैट television gets a platform for on national awards platform for sure. Thank you so much. Thank you.